محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا کافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قلا امداد کن۔ غوث اعظم گمر بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز الشیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ Allah and His angels shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you believers, send upon him divine shower, bless him and salute him with the best salutation. Allah اور اس کے فرشتے پیارے آقا پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود بھیجو۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی ہی مبارکبادی کے قابل ہیں ہمارے بھیمراج پور مکن پور کے سنی صحیح العقیدہ نوجوان، جنہوں نے اپنے بستی کے سالانہ جلسے کا بڑے اچھے سے اہتمام کیا، آس پڑوس کے لوگوں کو دعوت دیا، شاندار اسٹیج، شاندار مائکروفون، شاندار علماء کرام، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ نہیں کھائے ہیں، وہ بھی کھانے ہیں۔ جو ابھی مہمان آئے ہیں وہ شیخ محلہ کی مسجد میں جا کر لنگر کھا سکتے ہیں۔ جو ابھی مہمان آئے ہیں شیخ محلہ بستی میں جا کے لنگر کھا لیں، اور کھا کے کیا کریں؟ بولیے جلسے میں بیٹھ جائیں۔ اسی امید سے کمیٹی نے آپ کو کھلایا ہے کہ آپ کھائیں گے بھی، نبی کا گن گائیں گے بھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان ملی ہے نبی کا ذکر کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان دنیا میں زندہ ہے خدا رسول کی تعریف کرنے کے لیے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں دیتا خدا ہے، کھلاتے مصطفیٰ ہے۔ 150 برس پہلے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ جب ماں ایک لوتے کو بھولے آ کہہ کر بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے۔ ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی رچاتے یہ ہے، غربت میں مجرم کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے۔ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہے۔ شافع نافع دافع رافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باپ کھلاتے یہ ہے۔ کسر جنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے۔ انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہے۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی علامہ مبارک حسین صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب لگا کہ جلسے میں گرمی آئی ہے، اب تک آپ
ٹھنڈی کے موسم میں اپنی ٹھنڈک کا احساس دلا رہے تھے، اب آپ گرم ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ شاعری، نعتیہ کلام جو شعرا پڑھتے ہیں وہ بھی کوئی لکھتا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے اس کو بھی کسی نے لکھا ہے، مگر فرق یہ ہے دنیا میں جتنے لوگوں نے پیارے آقا کی تعریف کی ہے، کسی کا ایک کلام 2 کلام فیمس ہوا ہے، مشہور ہوا ہے، کسی کا 3 کلام 4 کلام فیمس ہوا ہے، مشہور ہوا ہے، مگر بریلی والے سرکار اعلیٰ حضرت پر مدینے والے سرکار کی ایسی مہربانی ہے، جتنا کلام جو کلام کہا ہے ہر کلام مدینے والے نے قبول فرما لیا ہے۔ لاجواب 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 میرے اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کا انتخاب ہے۔ ماشاء اللہ، اب ایسے ہی بیٹھیے گا اور اٹھ کے جائیے گا نہیں، شیخ محلے میں لنگر کا انتظام ہے، لنگر کھا کے کیا کریں گے؟ دل سے بھائی کیا کریں گے؟ واپس آئیں گے، کیونکہ لنگر میں جو چاول ہے کس کا ہے؟ چاول والے کا نہیں، مدینے والے کا۔ بولو، لنگر میں جو دال ہے وہ کس کی ہے؟ مدینے والے کی۔ لنگر میں جو گوشت ہے کس کا ہے؟ مدینے والے کا۔ لنگر کے کھانے میں جو تیل ہے کس کا ہے؟ مدینے والے کا۔ یہ مائکروفون کس نے دیا؟ مدینے والے نے دیا۔ یہ جلسہ ہمیں کس سے ملا؟ مدینے والے سے ملا۔ یہ علماء کس سے ملے؟ مدینے والے سے ملے۔ یہ شاندار ڈیکوریشن کہاں سے ملا؟ مدینے والے سے ملا۔ ارے میں نہیں کہتا، 150 برس پہلے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کیا؟ لا لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج اٹھتے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جائے، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اچھا، میں آئندہ پوائنٹ میں کہوں گا مارکوٹ لے کے جائیں گے علماء۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، قرآن کی آمد، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ آمین ثم آمین، ماشاءاللہ۔ تو شیخ محلے میں کیا ہو رہا ہے؟ جلدی سے بولیے، کیا ہو رہا ہے شیخ محلے میں؟ جلدی سے بولیے۔ لنگر ہو رہا ہے، کھانا کھا کے جائیں گے کہ آئیں گے؟ بولیے جلدی بولیے۔ آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ کیونکہ کسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بھاجپائیوں کا؟ نو نو، بھاجپائی کا نہیں۔ کانگریسیوں کا؟ نو نو، کانگریسیوں کا نہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کا؟ نہیں نہیں۔ ودھایک کا؟ نہیں نہیں۔ منتری کا؟ نہیں نہیں۔ منتری منڈل کا؟ نہیں نہیں۔ کس کا؟ سنو، اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کے بارے میں 150 برس پہلے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کیا؟ ذکر سب ٹھیکے، ذکر سب ٹھیکے، جب تک نہ مسئول ہو نمکی حسن والا۔ ہمارا نبی حسن کھاتا ہے، جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے دلالا۔ ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا۔ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمچا کیے، اندھے شیشوں میں چمچا۔ ہمارا نبی جیسے ستا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا۔ ہمارا نبی جس کی تو بند ہے تو سرو سلسبیل ہے، وہ رحمت
का एक नारा है दरिया या अली या अली पंडिता का एक नारा है दरिया नारा तकबीर नारा रिसालत सुभान अल्लाह। ये हमारे भुट्टो भाई हैं, झारखंड से आए हैं। कहाँ से आए हैं? झारखंड से। किसके लिए आए हैं? क्या नियत लेके आए हैं? नबी के जलसे में जाएंगे, कुछ लेके आए हैं। समझ रहे हैं? आप लोग भी घर से वही नियत लेके आए हैं। नबी के जलसे में जाएंगे, कुछ लेके आएंगे। क्यों? हुजूर का जिक्र हर जिक्र से अफजल है। हुजूर का जिक्र हर जिक्र से आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। नजारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, हमारे बीच अगर मुस्तफा नहीं होते, न जाने अपने अकीदे का हाल क्या होता, बरेली में गर अहमद रजा नहीं होते। माशाअल्लाह। तो बोलिए शेख मोहल्ला में क्या चल रहा है? जल्दी से बोलिए, क्या चल रहा है? लंगर चल रहा है। जो लोग आवाज हमारी पहुंच रही है, जल्दी जल्दी खा के लंगर हुजूर की मजलिस में आके बैठ जाएंगे। बोलिए, गौसिया मस्जिद के पास लंगर है, जरा जम के बैठिए। अभी जलसे का आगाज है। अभी से अगर आप ठंडे पड़ जाएंगे, सोचिए अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। समझ रहे? ये तो पहली तकरीर है। अभी बाहर वाले शायर हमारे आने बाकी हैं। उनके बाद अल्लामा फुरकान मंजरी है, उनके बाद सैयद अब्दुल कदीर मियां है, फिर बीच में मौलाना हमारे मुदस्सिर हुसैन साहब हैं, फिर सलातो सलाम है। और जलसे में जब आइएगा, बीच में उठ के मत जाइएगा। दिल में नीयत बना के आएंगे, हुजूर के जलसे में जा रहा हो, 10 बजे नहीं जाऊंगा, 11 बजे नहीं जाऊंगा, 12 बजे नहीं जाऊंगा, 1 बजे नहीं जाऊंगा। जब तक हुजूर का जलसा चलता रहेगा, बैठा रहूंगा, सुभान अल्लाह बोलता रहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलता रहूंगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत बोलता रहूंगा। जलसे के बाद सलातो सलाम होगा। सलाम के बाद जो उलमाए किराम पीराने एज़ाम दुआ मांगेंगे, इस दुआ में इंशाअल्लाह हमारी तकदीर बदल जाएगी। अगर हम बेनमाजी थे, उस दुआ के सजदे में अल्लाह सजदों की दौलत देगा। अगर हम बाप माँ के नाफरमान थे, उस दुआ के सजदे में अल्लाह बाप माँ का फरमाबरदार बनाएगा। अगर हम 2 नंबर थे, फ्रॉड करते थे, चीटिंग करते थे, धांधली करते थे, उलमा की दुआ होगी इंशाअल्लाह। उस दुआ के सजदे में अल्लाह पाक लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। आए थे गुनहगार होकर, जलसे के बाद जाएंगे नेकीकार होकर। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, वाह। सुन्नियों की दुआ, सुन्नी की दुआ बड़ी मजबूत होती है, याद रखिएगा। आप सुनते होंगे इज्तिमाएं होते हैं उनके यहाँ इज्तिमा में। अभी कह रहे थे हमारे कौन साहब कह रहे थे कमरे में, हुजूर मौलाना मुदस्सिर साहब और हमारे दिलदार भाई के कह रहे थे, हजरत तीसरे रोज दुआ होती है, दुआ में ज्यादा लोग उधर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ बताओ, उस दुआ में ज्यादा लोग जाते हैं जिन दुआ मांगने वालों के ईमानो अकीदे का ठिकाना नहीं है। मगर हमारे सुन्नी उलमा जानो जिगर नबी पे फिदा करते हैं, सुबह शाम उठते हैं या रसूल अल्लाह, सुबह शाम उठते हैं या रसूल अल्लाह। क्यों ना हो, आला हजरत फरमाते हैं, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए। मेरे मौला हजरत अच्छे मियां हो, रज़ा अच्छा रसूल कीजिए। हमारी दुआ में भी आप शरीक रहेंगे। सलात सलाम के बाद दुआ होगी, दुआ में शिरकत करके अपने घर जाएंगे। आजकल लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है, मौलाना अख्तर साहब, बड़ा अफसोस होता है जलसों में जाने के बाद, जब सुन्नियों के जलसे का आलम हम देखते हैं, लोग आते हैं और टाइम देखते रहते हैं, बार बार घड़ी देखते रहते हैं। यानी उन्हें ये फिक्र सताती है कि जल्दी से घर जाऊंगा। मेरा मोबाइल पिछले 2-3 घंटे से साइलेंट पड़ा हुआ है, पिछले 2-3 घंटे से मैं जलसे में बैठा हूँ, ना मैंने व्हाट्सएप खोला है, ना मैंने फेसबुक खोला है, ना मैंने ट्विटर खोला है, ना मैंने यूट्यूब चलाया है। 2-3 घंटे से मेरे दोस्त वेटिंग में बैठे होंगे, 2-3 घंटे से मेरे साथ मेरे याराना बोल मेरे यार मेरे मुंतजिर रहते होंगे। जल्दी से घर जाऊंगा, 11 बजे तक जलसा सुनूंगा, घर जाके व्हाट्सएप चलाऊंगा, 12 बजे तक जलसा सुनूंगा, घर जाके यूट्यूब चलाऊंगा। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, फिर सो जाऊंगा। फजर में तो मुझे उठना नहीं है, सुबह में 8 बजे 9 बजे उठूंगा। ये आज हमारा नौजवान तबका ये वाला लाइफ स्टाइल बना के चलता है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, खबरदार अपने जलसों को अपने से खराब मत करना। ये जो उलमा बैठे हैं, ये मौलाना नईम साहब बैठे हैं, ये मौलाना फारूक साहब हैं, और जो बस्ती के दीगर उलमा है, महबूब सुल्तान साहब हैं। पूछो क्या इतनी आसानी से जलसा सजता है? क्या इतनी
बड़ी आसानी से जलसे के सारे इंतजाम हो जाते हैं। ये कहेंगे नहीं मौलाना साहब, घर घर घूमना पड़ता है, एक एक आदमी 4-4 बार बुलाता है। कोई कहता है बाद में आओ दूंगा, कोई कहता है 5 तारीख को दूंगा, कोई कहता है 10 तारीख को दूंगा। यानी देगा 100 रुपया 4 बार दौड़ाएगा, देगा 200 रुपया 5 बार दौड़ाएगा। यानी 2-3 महीना पहले से सारा का सारा इंतजाम किया जाता है, तब जाके सालाना जलसा सजाया जाता है। बड़ी मोहब्बतों से आपके लिए लंगर पकाया जाता है। मगर मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, आप अगर ऐसे उठ के चले जाएंगे, सोचिए जलसे का क्या होगा। अभी मैं आगाज़ तकरीर में खड़ा हूँ, अगर मैं माहौल बना के चला जाऊंगा, इंशाअल्लाह हमारे आने वाले जो मेहमान होंगे वो आपकी भी तारीफ करेंगे, आपकी बस्ती की भी तारीफ करेंगे, आपके जलसे की भी तारीफ करके जाएंगे। हाँ, मगर आप दिल जमाई से बैठिएगा, उठने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बैठे हैं हुजूर के नाम पर। किसके नाम पर? हुजूर के नाम पर, जिनकी जिंदगी को, जिनकी सीरत और किरदार को पढ़ पढ़ कर आज नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। कोई खेत में धान काट रहा है, वहाँ कलमा पढ़ रहा है। कोई मार्केट में सब्जी बेच रहा है, वहाँ कलमा पढ़ रहा है। कोई बिजनेस की डीलिंग कर रहा है, वहाँ कलमा पढ़ रहा है। कोई सर्विस स्टेशन में है, वहाँ कलमा पढ़ रहा है। कोई अपने ऑफिस में है, वहाँ कलमा पढ़ रहा है। कोई अपनी फॉर्च्यून की दुकान पे है, वहाँ कलमा पढ़ रहा है। कोई वैज्ञानिक लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है, वहाँ कलमा पढ़ रहा है। कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है, वहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है। क्या है इस्लाम में? क्यों इतनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है? सुनो मेरे दोस्तों, इस्लाम में सच्चाई है, इस्लाम में दयानतदारी है, इस्लाम में पैगाम रसूल है, इस्लाम में 5 टाइम नमाज है, इस्लाम में पड़ोसी को सताने का हुक्म नहीं है, इस्लाम में मुसलमान भाई को गले से लगाने का हुक्म है, छोटों पे शफकत करना है, बड़ों से मोहब्बत करना है, बाप माँ की खिदमत करना है, बस्ती में तबलीग इस्लाम करना है। क्या वजह है सारी दुनिया कलमा पढ़ रही है? क्या वजह है दुनिया वाले खिंचे खिंचे इस्लाम की तरफ आ रहे हैं? आपको यकीन न हो, एक मौलिक कहता है द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द रिलीजन इट कुड बी इस्लाम। इस वक्त दुनिया में सबसे फास्टेस्ट, सबसे स्पीड, सबसे तेजी से कोई धर्म, कोई रिलीजन अगर ग्रोइंग कर रहा है, ये ओनली इस्लाम है। मैं कहता हूँ, इस्लाम तूने क्या कर दिया है? कल तक जब मक्का में 40 आदमी मुसलमान थे, जब मेरे प्यारे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया था, 3 आदमी कलमा बोलने वाले थे। मक्का वालों ने डिसाइड किया था मुसलमान तादाद में कम है, इन्हें मसल दिया जाएगा, इन्हें रौंद दिया जाएगा, इन्हें निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये क्या दीन की तबलीग करेंगे? हमारे बाप दादाओं के धर्म से हटने वाले हम नहीं है। ये प्लान बनाया था, मगर उन्हें क्या पता था, ये बढ़ते बढ़ते जब बद्र के मैदान तक पहुंचे, तादाद 313 की हो गई। सुभान अल्लाह। इन्हें क्या पता था ये सच्चाई के रास्ते पे है, ये ईमानदारी के रास्ते पर है। बढ़ते बढ़ते जब 8 हिजरी हुई है, 8 हिजरी की तारीख में जब फतह मक्का का समय आया है, यही 3 लोग बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गए हैं। कितने हो गए? जल्दी 10,000 हो गए। 10,000 हो गए। और आज पूरी दुनिया में नजर दौड़ाइए, पूरी दुनिया का मैप उठा के देखिए, 57 कंट्री, 57 कंट्री आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें मुसलमानों का शासन चल रहा है, जिसमें मुसलमान तेजी से फैल रहा है। द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क की ताजा स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 25% ऐसे मुसलमान हैं जो पहले ईसाई थे, बाद में कन्वर्टेड हो गए हैं, आज मुसलमान बन गए हैं। द टाइम्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम के मुताबिक इंग्लैंड की सरजमीन पर 6% ऐसे लोग हैं जो कल तक ईसाई धर्म के फॉलोवर थे, कन्वर्टेड हो गए, आज इस्लाम के दामन में आ गए। मैं कहता हूँ, इन्हें किसने कहा था दीन को तबलीग करने का? इन्हें किसने कहा था इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए? तो दुनिया जवाब देगी, जिस पैगंबर का किरदार सच्चा है, जिस पैगंबर की किताब सच्ची है, जिस पैगंबर का उठना बैठना इस्लामी तबलीग के लिए नमूना हयात है, उस पैगंबर की जिंदगी को कोई पढ़ता है, अपने धर्म को छोड़ता है, इस्लाम के पावन में मुस्कुराता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम। मुसलमान जहां रहता है इस्लाम की तबलीग करता है। हालिया
दिनों के खबर के सर्वे के मुताबिक इंग्लैंड की सरजमीन पर एक आदमी कलमा पढ़ता है, मुसलमान बन जाता है। उससे किसी ने पूछा, तू तो ईसाई धर्म का फॉलोवर था, तुझे इस्लाम में क्या अच्छा लग गया, तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? उसने कहा, मैंने इस्लाम को इंटरनेट में बहुत सर्च किया, मैंने इंटरनेट में दूसरे रिलीजन को सर्च किया, बौद्ध को सर्च किया, पर्सियन को सर्च किया, क्रिश्चियन को सर्च किया, दीगर मज़ाहिब रिलीजन को मैंने गूगल में सर्च किया, मगर मैं जिस चीज की तलाश में था वो मुझे न मिल सकी। मगर जब मैंने इस्लाम को इंटरनेट और गूगल में सर्च किया तो मुझे समझ में आया ये वही पैगंबर है। जब कोई इन्हें पत्थर फेंकता है, पैगंबर उसके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। ये वही पैगंबर है। जब कोई कचरा डालता है, पैगंबर उसकी तबीयत कुर्सी के लिए चले जाते हैं। ये वही पैगंबर है। जब जंग के मैदान में इन पर लोग पत्थर चलाते हैं, सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने पत्थर फेंका है, आपको लहूलुहान कर दिया है, या रसूल अल्लाह, इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। जिस तरह नूह पैगंबर की कौम को, जब नूह पैगंबर को उनकी कौम ने सताया था, नूह पैगंबर ने उनके लिए बद्दुआ किया था। कुरान शरीफ के 29वें पारा सूरह नूह के अंदर है। नूह की कौम ने जब उन्हें सताया था, नूह ने बद्दुआ किया था, क्या? रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन तय्यारा। नूह ने कहा था, मेरे मौला, जमीन में काफिरों की बस्तियों को उजाड़ दे, इनके नाम और निशान को उजाड़ दे। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नूह ने बद्दुआ किया था अपनी कौम के लिए, ये जंगे उहद में ये जालिम आपको पत्थर फेंक रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप भी इनके लिए बद्दुआ कीजिए। मेरे आका ने हाथ उठाया था, सहाबा ने हाथ उठाया था। सहाबा सोचते थे, अब हुजूर इनकी हिलाकत के लिए बद्दुआ करेंगे, मगर दुनिया जानती है, जो रहमतुल लिल आलमीन होता है, जो सारी कायनात की रहमत होता है, वो जब भी हाथ उठाता है, किसी की बद्दुआ नहीं करता, हिदायत के लिए दुआ मांगता है। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।